I wanted to discuss कल के दिए हुए क्वेश्चन. हेलो एवरीवन, तलवीन, सिमरन, आदर्श. आई वांटेड टू डिस्कस जो हमने कल क्वेश्चंस दिए थे आपको, वेदर दे आर एथिकल और नॉट. ठीक है? हाँ जी, बताओ. पहला क्या था? एनकाउंटर किलिंग्स. ये मैंने कल करवा दिया था वैसे. They are justified because of utilitarian nature of society. I'll explain both of the school of thought today. I've explained yesterday which school of thought? Okay. मैंने इलायची खाई थी, तो इलायची का जो वो था ना छिलका गले में टक रहा है. गिलास बंद है. उतर जाए. तो कुछ लोगों का मानना है एनकाउंटर किलिंग्स आर एथिकली जस्टिफाइड. व्हाई? बिकॉज they bring good consequences for the society in terms of certain criminals have known all the loopholes of the law, like Atiq Ahmed. 43 murders have been committed by him, and all those who are giving any evidence against him were killed before giving evidence. All the witnesses were killed by him. So we can never prove in the court of law that who killed or whether that act was committed by Atiq Ahmed or not. So in one school of thought advocates that it is justified, such people can only be made to an end by which killings? Encounter killing. Is that fine? Is that fine? Second school of thought. One school of thought says that the means to put to an end to the crime is wrong. If police starts doing encounter killing, can you give the surety that in the future police won't kill the innocent? The very basic of Indian Constitution rests on three: legislative, executive and judiciary, and there is division of power between them. Police comes under executive authority. If police become the judiciary as well as the executive, that I know you have done something wrong and I'll kill you, am I a judiciary? That is the reason why Indian Constitution has divided legislative, executive and judiciary into three: separation of power. The very basic concept of Constitution, the very basic nature of power is violated. So the means to put the end to the crime and criminal is wrong. Rather than improving the law and order, government is making a shortcut, doing the quick fix. What is the quick fix government is taking? Encounter killing. So by this logic, ethically it is wrong, because we cannot make encounter killing as a norm. We cannot make encounter killing as a norms to end the crime and criminal. Fine. Now the first, yes. देखिए, that is again questionable, right? If you look at the
encounters which has happened in the UP in the past 5 to 6 years, I don't think all of them can be categorized into self-defense. There are various loopholes to this theory, right? Right? Then another school of thought, which is virtue ethics school of thought, they are judging the intention of police. Has the police or the policemen who are killing those criminals are getting some promotions? So they have a vested interest in killing more people than less people. They are killing not because the crime will be reduced, but because they will get promotion. So there is a self-interest which is involved here. So this act becomes ethical or unethical? Unethical. What do you think, ma'am? Are people good or bad? Both. Socratic school of thought or virtue thinker believes that everyone has goodness inside. हर एक के अंदर अच्छाई है, वो अच्छाई छुप गई है आपकी, अंधेरा आ गया है क्योंकि आप अपनी आत्मा के करीब नहीं हो, आप अपने सोल से दूर हो। जितना जितना आप अपने सोल के पास आते जाओगे पास पास, उतना उतना अच्छाई के पास आते चले जाओगे। तो जितना जितना आप शारीरिक सुख में इन्वॉल्व होगे, आप बुराई के पास जा रहे हो। जितना आप आत्मा के सुख में इन्वॉल्व हो रहे हो, अच्छाई के पास आ रहे हो। और व्हाट इज डार्कनेस? Absence of light. What is darkness? Absence of light. This is not me saying, it is Socrates which is saying the same, explained by Plato. Who has explained the Socratic theory? Plato. ठीक? So they, first school of thought focused on what? Actor. Second on action. And last on कौन सी? Do acts which brings positive consequences, do acts which avoid acts which bring negative consequences. Action. Judge the action in itself. Killing someone is wrong. We cannot justify war. Judge the action. Yes or no? Do not judge it by its consequences but by the action itself. क्या लड़कियों को, क्या बच्चों को थप्पड़ मारना गलत है? Is it wrong to slap children? Yes, no. Why? To teach them, sometimes we slap. But why it is wrong? Lot of theories, right? चलो ठीक है। अच्छा, सेकंड फर्स्ट हो गया क्या? एनकाउंटर किलिंग्स। देखो, आपको यहां पे एथिकल माइंडसेट डेवलप करना है। हर एक चीज का स्कूल ऑफ थॉट तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या कहता है वो स्कूल ऑफ थॉट। बात समझ में आई? हर एक चीज का क्या पता होना चाहिए आपको? स्कूल ऑफ थॉट। क्या पता होना चाहिए भाई? स्कूल ऑफ थॉट। देन ओनली यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट। समझ में आई बात? आई या नहीं आई? आई? ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सेकंड एग्जांपल क्या था? यूथनेशिया। Consequentialists will justify it? Yes, because it brings positive consequences. Why? Because euthanasia, the person who is deceased is a burden on medical fraternity, on the state, on the society, economically. So it is better to get rid of that person. Euthanasia is not for healthy mind. In India, we are not allowing euthanasia for everyone. There are two kinds of euthanasia. हिंदी में मतलब बोलते हैं इसको, मैडम, इच्छा मृत्यु दो तरह की होती है। बुढ़िया ने, जब वो जवान थी, बूढ़े हो गए आप भी कभी,
Okay. जब वो जवान थी तो उसने अपनी विल लिखी कि इन केस आई एम फाउंड विद टर्मिनल इलनेस विच कैन नॉट बी क्योर्ड बाय मेडिकल साइंसेस, बाय नॉन मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स, आई शुड बी गिवन डेथ. So I should be put to death. That is called actively someone is killed. लिया इंजेक्शन और लगाया इंजेक्शन और जहर की पुड़िया अंदर शरीर में उतार दी, मार दिया. एक्टिव यूथनेशिया. Another thing is passive euthanasia, which says someone is killed. Suppose someone is terminally ill, is it put into ICU with oxygen mask and oxygen mask is removed, हटा दिया, उसको लाइफ सपोर्ट से हटा दिया. कोई ब्रेन डेड है, किसे हटा दिया? लाइफ सपोर्ट. क्या करेंगे फिर? क्या हो गया? कोई नहीं, 10 सेकेंड हो गए. Sir Mahi, during answer writing will we have to explain all three school of thought? No. I hope you are enjoying this euthanasia meaning. समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम जोन आउट हो जाती हो. टेक्निकल ग्लिच है दोस्तों, नहीं हुआ है कोई ग्लिच तुम्हारी लाइफ में? नहीं बताओ. अरे लाइफ ही ग्लिच है. ठीक बात है. और ग्लिच का ही मजा है. कहते हैं जीवन में जीने में बड़ी पेन है और पेन में ही मजा है. जहां दुख है वहीं सुख है, जहां निराशा है वहीं आशा है, जहां पे क्रूअलिटी है वहीं काइंडनेस है. नहीं, सुख का क्या मतलब जब दुख ना हो तो? When you are born in the big building, जब आप झोपड़पट्टी में रही हो और तब आपको बिग बिल्डिंग मिले तब मजा है. नहीं, वरना मजा क्या है? बिग बिल्डिंग में जो पैदा हुआ वहीं उसे पता ही नहीं है ना, रियलाइज नहीं, उसे मजा नहीं आएगा, उसे पेन मिलेगा, पेन के बाद प्लेजर. आगे पक्का? हेलो एवरीवन, how can we frame the question? I'll explain answer writing. Mahi, I'll explain answer writing today. Others, sir, then suicide also comes under ethical but not moral because the individual is doing by their own decision. It is comes individual decision है तो वो moral हुआ. अगर इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग वो सही है तो वो moral हुआ, ethical नहीं हुआ. यूथनेशिया समझ में आया? एक्टिव एंड पैसिव, टू काइंड ऑफ यूथनेशिया. पैसिव, कोई आईसीयू में पड़ा है, मास्क लगाया हुआ है. अरुणा शानबाग, शी वॉज अ नर्स, शी वॉज रेप्ड इन द बेसमेंट बाय वन ऑफ हिज कलीग, हर कलीग. दैट गाय, उसने उसके सिर यहां पे पट्टा डाला एंड शी वॉज रेप्ड. ठीक है, उसको पता नहीं चोक हो गया तो उसके ब्रेन में ऑक्सीजन नहीं गई. अरुणा शानबाग के, किसकी बात कर रहा हूं मैं? अरुणा शानबाग. शी वॉज पुट टू इन आईसीयू फॉर 34 years. द नर्सेस केप्ट ऑन आस्किंग कि शी शुड बी गिवन all the life support which she is given should be removed and she should be given death. ठीक है जी, ये समझ में आया? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन इंडिया वी अलाउ पैसिव यूथनेशिया with certain safeguards. In India, active euthanasia is not allowed. Certain European countries allow active euthanasia. Okay, first of all, you have understood what is euthanasia, right? Now, what does consequences suggest? Euthanasia must be given. Why? Economic benefit. Why? That opportunity cost of that
hospital bed, someone who can survive can be put to that bed because resources are in scarcity. So it is justified. Okay. But action thinker says giving death to someone, if you cannot give life, how can you give death? Can you give life to someone? मरे हो को जिंदा कर सकते हो तो जिंदा को मारने का अधिकार क्यों है? नहीं, तो ये लोग नहीं जस्टिफाई करेंगे. व्हाट अबाउट एक्टर, द पर्सन हु इज कमिटिंग द क्राइम, उसका कोई, देखो यहां पे कैसे जज करना है, क्या एक्टर का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है? क्या डॉक्टर का अरुणा शानबाग को मारने का कोई बेनिफिट है? नो. तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाता है, जस्टिफाइड और नॉट जस्टिफाइड? जस्टिफाइड. बात समझ में आया? मोदी जी को जज करते हैं, डीमोनेटाइजेशन. कॉन्सिक्वेंशियल थिंकर क्या बोलेंगे, मोदी जी ने क्या किया? गलत. एक्शन विच वॉज टेकन की एक रात पहले ही बैन लगा दिया, क्या किया? गलत. प्रॉपर प्रोसेस नहीं फॉलो किया. बट मोदी जी कैसे जस्टिफाई करते हैं कि मेरी मां खुद लाइन में लगी है. मोदी जी की मम्मी लगी ना लाइन में, मेरे को खुद कोई फायदा नहीं होगा ये करके. तो मोदी जी कैसे, क्या कहते हैं, जस्टिफाई कैसे करते हैं कि मेरा कोई क्या नहीं था इसमें, वेस्टेड इंटरेस्ट. क्या नहीं था इसमें कोई भी वेस्टेड इंटरेस्ट. अरे समझ में आ रहा है तुमको? और बताओ. एंजॉय करो अभी थोड़ा सा. नहीं, सब सही है. ये समझ में आया आपको? थर्ड इज अबॉर्शन. There are various types of abortion. That one is medical termination of pregnancy under certain complication. ठीक है, genetic deficiency, when the gender is not decided, that is 26 weeks in India, or in US it is 28 weeks. When the gender of the fetus is not decided, gender is decided after how many weeks? After 3 months I believe. नहीं, 3 months और 6 months. हाँ, शायद ऐसा बोलते हैं कि 24, इंडिया में 26 वीक का है रूल ना, 24 वीक्स का है. तो whatever weeks are there. So idea is here Christians believe in no abortion at any stage. They believe in piousness of life. It is a God which is giving the life. It is not the mother and father who are giving the life. There is a lady in Ireland. Which country? Ireland. Savita Halpanwar. She died. कितना है? 14 हफ्ते, 3 months. 3 months हो गया ना, 3.5 months. तो Savita Halpanwar says that she was having a complication in the pregnancy and she was not allowed to terminate that pregnancy. She was living in Ireland and ultimately she died. This triggered the debate in their society whether abortion should be allowed or not. And now they have allowed. In India it is allowed. But why? What is the complication here? That some people might use abortion after doing the gender test. If the fetus is a female, they will kill. So that is a challenge. I hope I have explained. See, everything has a nuance. Everything has certain
additional information of layers of information, right? Okay, what is the next? What is the next? Espionage. Very good. See, espionage, by consequences for the country, it is justified by this logic. But certain people question the means. अगर आज आप जासूसी कर रहे हैं किसी और कंट्री पर, कल को वो कंट्री आप पे करेगी तो कैसा लगेगा? USA has a elaborated program in year 2017 by the name PRISM. क्या नाम था यूएस के प्रोग्राम का? PRISM. They were doing on Asia, entire India, Europe, America, South America, Africa. They were doing spying on all countries' head, Prime Minister of India, everyone. There was a guy in US. The name was Edward Manning. क्या नाम था इस बंदे का? मैनिंग. नाम मैनिंग है, ये लेटर ऑन वीमेन में कन्वर्ट हो गया था. दिस एडवर्ड मैनिंग बिकम्स क्या? विमेन. ठीक है. ही वॉज इंस्टिगेटेड बाय जूलियन असांज. इस बंदे ने, ही इज अ विकीलीक्स हेड ऑफ अ ग्रुप name WikiLeaks. These group leak all the sensitive information of powerful people, all the dirty truths of this world. Julian Assange instigated Edward Manning, motivated Edward Manning, and some says Julian Assange is also a guy, he is also a guy. Later on this guy says कि I will convert myself to women. मैनिंग से प्यार किया जूलियन ने, अपने प्रेम के जाल में फंसा लिया. That person was vulnerable. कोई किसी को प्यार में फंसा सकता है? फंसा सकता है. वो प्यार क्या हुआ फिर? वो प्यार थोड़ी हुआ. प्यार में फंसाना, कोई मछली थोड़ी पकड़नी है कि कांटा फेंका और मछली पकड़ ली. नहीं, ऐसा होता है? तुम फंसे हो किसी के प्यार में? तुम फंसे हो अमन? क्यों? तुम्हें पता नहीं लगा? तुम्हें नहीं पता लगा कि तुम्हें फंसाया जा रहा है? नहीं, तुमने फंसाया है, तुम फंसे? पता नहीं. नदीम, प्यार में कोई कैसे फंस सकता है? तो वो प्यार थोड़ी है फिर. नहीं, प्यार में तो समर्पण होता है, फंसना थोड़ी होता है. प्यार में तो पीड़ा लेके भी मजा आता है. नहीं, पेन हो रही है लेकिन मजा आ रहा है. वो कहती है ना हीरोइन कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी. हीरो कहता है मैं बर्बाद होना चाहता हूं, आकर. नहीं. तो पॉइंट इज, एडवर्ड मैनिंग जो है, हाँ मतलब मेरे को बहुत बच्चे मिलते हैं कि इस लड़की ने मेरा यूज कर लिया, इस लड़के ने मेरा यूज कर लिया. कोई किसी का यूज नहीं करता. मुझे ऐसा लगता है कि आदमी और औरत की, या लड़के और लड़कियों की एक्सपेक्टेशन पहले होती है लो, कि बस मिल जाए, है ना, कि बात कर ले. पहले तो फोन पे बात कर ले, रिप्लाई कर दे, फिर उसके बाद कहीं मिल जाए. उसके बाद ना एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है. आखिरी में एक्सपेक्टेशन क्या होती है? कि शादी कर ले. अगर दोनों पार्टी की है तो हो जाएगी. अगर एक की या एक की नहीं है ना, तो दूसरा क्या बोलेगा? कि इसने धोखा दिया. गोल्ड डिगर. हाँ, लड़की के केस में यूज होता है वर्ड गोल्ड डिगर. लड़का खंगला है और गोल्ड क्या, घर पे जो पीतल पड़ा है घर पे, और वो भी चुराया हुआ, और कह रहा गोल्ड डिगर. समझ रहे बात मेरी? तो लोग, अहंकार होता है सब में ना. हाँ, लड़का लोग भी करता है, दोनों में अहंकार है. कोई अपनी गलती नहीं मानता. आप बात समझे? अहंकार में क्या बोलेगा आदमी? अपनी गलती मानेगा तो अहंकार टूट गया, दूसरे की गलती है. नहीं. तो एडवर्ड मैनिंग और इनका कुछ रिलेशन था, पता नहीं. उसने बाद में अपने आप को विमेन कन्वर्ट कर लिया. कुछ लोग बोलते हैं जूलियन असांज ने इसका फायदा उठाया, और इसके थ्रू NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ यूएस, NSA सॉरी, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ऑफ यूएस, इसके साथ इसका जो प्रोग्राम था प्रिज्म एस्पियोनाज का, लीक करवाया. तो ये यूपीएससी के 2017 के मेंस के अंदर केस स्टडी आई थी, हाउ
you analyze the ethical issues involved in this case. What were the ethical issues? End goal. A country has justification to do the espionage. We cannot deny it. Means, no. Can a country justify if someone else does the espionage? तो ये किस तरह का दोगला चेहरा हुआ कि मैं करूं तो बहुत अच्छा, तुम करो तो ओहो बहुत गलत लोग हो। नहीं, आज मैं पढ़ रहा था, बहुत सारे लोग किसी को गलत बोलने से पहले हटते नहीं है। नोटिस किया आपने? कुछ लोग बहुत ज्यादा जजमेंटल होते हैं, स्पेशली विद एज। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है जजमेंट करने की परिभाषा बढ़ जाती है। छोटे होते हैं हमारा हर कोई दोस्त होता है, उसमें हम कोई कमियां नहीं देखते, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते रहते हैं हम जजमेंट बिठा देते हैं कि ये कैरेक्टरलेस है, ये गलत है, ये सही है। कितना जल्दी बिठा देते हैं ना। मुझे दो कारण लगते हैं। पहला कारण कि मौका नहीं मिला, कभी कुछ जीवन में ऐसा किया नहीं, डर लगता है, या मौका नहीं मिला, है ना। कि किसी ने प्यार किया ही नहीं तो वो क्या जाने प्यार का मतलब, तो वो तो बजरंग दल ही ज्वाइन करेगा वैलेंटाइन डे वाले दिन, है ना। और दूसरा रीजन हो सकता है कि लोग जिस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं ना, मन ही मन उसको एंजॉय करते हैं। मैं बोल रहा हूं अमन तुमने क्या किया, और मन ही मन मैं तुमसे पूछूंगा, मेरा उद्देश्य अपनी उत्तेजना को मिटाना है। बात समझे? लोगों को ये बात करके क्या आता है? मजा। बातों में तो मजा ले ले, नहीं समझे? कोई और कर रहा है लेकिन उसकी बातों का तो मजा ले ले, और डांट के पूछेंगे अपने आप को थोड़ा सा हायर लेवल पे दिखाने के लिए। समझे? समझ में आया? तो इट इज जस्टिफाइड बाय कॉन्सिक्वेंसेज बट इट इज नॉट जस्टिफाइड बाय मीन्स थ्योरी। व्हाट अबाउट द एक्टर? द पर्सन हु इज डूइंग इट हैज अ सेल्फ इंटरेस्ट, यस, सो इट इज नॉट जस्टिफाइड। द इंटेंशंस आर नॉट प्योर ऑफ दैट कंट्री। अरे समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट। डन? कैन वी स्टार्ट? हेडिंग बनाइए। सिमरन ने पूछा है यूथनेशिया। सिमरन कुमारी, यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया का मतलब होता है इच्छा से मृत्यु। आपने मौत मांगी, मौत मिल गई, वाह। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। लाइफ का मतलब है जिंदगी जी मिले, और जिंदगी जब चाहूं, मेरा शरीर, मेरा कंट्रोल, जब चाहूं गला काट लूं, मेरा मन। लिबर्टी, फ्रीडम, नहीं। मेरी लाइफ में परेशानी है, सॉल्व करोगी मैडम तुम मेरी लाइफ की परेशानी? फिर तो मेरे को सुसाइड करने दो, आई शुड एंड माई लाइफ। देखो मैडम कितनी खुश है, जाने दो। मॉरल और एथिकल का बात नहीं है। गलत क्या है इसमें? मैं सोसाइटी के अगेंस्ट जब जा ही नहीं रहा तो गलत क्या है? गलत यूथनेशिया का मतलब है कि मैं एक अपनी विल बनाऊं, लिविंग विल। जिंदा जब हूं तब मैं एक अपनी एक वसीयत बनाऊं और उसमें लिखूं, अगर मेरे को ऐसा कोई रोग हो गया जिसको साधना, जिसको ठीक करना बहुत डिफिकल्ट हो, तो मुझे क्या दे दो? इंजेक्शन। नहीं लगवाया इंजेक्शन तुमने कभी? किस चीज के लिए? वो चीज के लिए देखो क्या, टेटनस वगैरह तुमने लगवाया इंजेक्शन कभी? तो इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से, दूसरे की इच्छा से मुझे क्या मिल जाए? मेरी इच्छा से सर्टेन कंडीशंस के फुलफिल होने पे। बात समझ में आई? सिमरन, सर इज एबॉर्शन एथिकल फॉर द एक्टर्स स्कूल ऑफ थॉट? डिपेंड्स। अगर एबॉर्शन करने से मेरा कुछ हित है, होता है, मेरा फायदा दूसरे का नुकसान, तो गलत है, गलत है माही, गलत है। एक्टर स्कूल ऑफ थॉट और वर्च्यू थिंकर्स, इनको वर्च्यू थिंकर बोलो माही। नहीं,
वर्च्यू। ठीक है, तुम जो पढ़ती हो ना, तुम बोल के पढ़ा करो, ठीक है। एक्टिव यूथनेशिया क्यों नहीं किया? जस्टिस कात्जू के सामने जब ये बात आई साल 2017 में, उनके सामने पक्ष रखा गया कि एक्टिव यूथनेशिया में दिक्कत क्या है कि इंडिया, उन्होंने कहा कि क्या हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ पीपल इन इंडिया हैव दैट काइंड ऑफ माइंडसेट वेयर they are free enough to take the decision about their death. Don't you think people will use it as an escape mechanism? क्या मृत्यु आप इसलिए ले रहे हो कि जीवन में हार गए? कोई बंदा पीएम बन के, देश का राष्ट्रपति बन के अगर बोले मेरे को इच्छा मृत्यु चाहिए, उसको दो। मगर इच्छा मृत्यु कौन मांग रहा है? जो जीवन में बिजनेस में फेल हो गया, पैसे हार गया, जुआ में हार गया, सारी संपत्ति, वो इच्छा मृत्यु मांग रहा है। वो इच्छा मृत्यु नहीं मांग रहा है, वो क्या मांग रहा है? एस्केप। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में अगर आप इस तरह के कानून ले आओगे तो मिसयूज होने की प्रोविजंस संभावना कम है या ज्यादा है? नहीं। लोग कभी मांगी है मौत? आपने मांगी है मौत? हैव यू एवर आस्क्ड फॉर डेथ? हाँ, मौत, हाँ नहीं मांगी। अरे मौत तो वैसे ही बदनाम है, असली दुख तो जीने में है। तो पॉइंट ये है तो पॉइंट ये है कि बहुत बार मांगी होगी आपने, आप एडमिट नहीं कर रहे हो। एवरीवन कि यार मौत ही आ जाए, जब चोट लग जाती है कई बार, साला इतना दर्द हो रहा है, मौत ही आ जाए। नहीं मांगी, ओके। तो आउट ऑफ एस्केप नहीं मांगना है किसी चीज से मौत। जीवन को अचीव करके बोलेंगे कि अब सब कुछ पा लिया, अब आ जाए मौत। संथारा, Jains in India have a practice called Santhara. It is a debatable practice ethically. It is not allowed legally. But Jains, there are people who adopt Santhara that they have achieved all goals of their life. Now they have become 70 years of age. They decided to leave what kind of water, food, खाना पीना त्याग देते हैं और धीरे धीरे किसको प्राप्त हो जाते हैं? मौत। जिंदगी की तलाश में हम मौत के कितने पास आ गए? नहीं बट वो लोग जिंदगी से भर चुके होते हैं और वो क्या करते हैं? अदीम मौत के पास चले जाते हैं। देयर वाज अ कंट्रोवर्सी इन जैन्स। देयर वाज अ गर्ल ऑफ आई गेस 9 years of एज। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं संथारा लूंगी। संथारा सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया था। फिर बात आ जाती है आर्टिकल 25 की, फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रीच द रिलीजन। समझ रहे हो? भिड़ंत देख रहे हो आप? तलवारें खींच रहे, समझ रहे हो? एक तरफ आर्टिकल 21 तलवार लेके खड़ा है, एक तरफ आर्टिकल 25 तलवार लेके खड़ा है। किसकी माने? दोनों फंडामेंटल राइट है। बताओ, समझ आया आपको? कंसेप्ट समझ आया? संथारा रिलीजन की फ्रीडम क्या कहता है? मेरा रिलीजन, मेरा लाइफ, मैं जो मर्जी करूं। आर्टिकल 21 क्या कहता है इंडिया में? कि लाइफ लेने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 25 इज ओनली टू गिव लाइफ, देने का, लेने का नहीं। और किसी की लाइफ ली भी जाए तो किसके थ्रू ली के जाए? प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ। लीगली आप अपनी जान दे दो, नॉट विदाउट लॉ। पता होगा ना, सुसाइड इज अ क्राइम इन इंडिया। सुसाइड एक ऐसा क्राइम है, अगर ये क्राइम सक्सेसफुल हो जाए तो मुजरिम पकड़ा नहीं जाएगा। मतलब कितना अमेजिंग क्राइम है यार। मुजरिम अगर ये क्राइम सक्सेसफुल हो जाए तो मुजरिम पकड़ा जाएगा क्या? ठीक है सर। यूथनेशिया मैंने एक्सप्लेन कर दिया। माही, सिमरन, मानसी, सर प्लीज एक्सप्लेन एस्पिनाज अमेरिकन प्रोजेक्ट। रीड मोर ऑन इंटरनेट अबाउट द प्रिज्म प्रोग्राम। प्रिज्म, PRISM। Mansi, sir, then how will we describe this in the answer? Ethical or unethical? We have to mention all the perspectives. Mahi, these types of question will not be asked.
This is just a mental exercise to explain more about the concept which I am teaching. Mahi Mahi. So the point is, such kind of issues are not asked in the exam. But exam, before the exam, your mind should be mentally acceptable to the possibilities of the situation. This is what you are learning, the possibilities. पॉसी नहीं, अभी तक आप लोग का मेंटल विकास क्या होगा ना, हर सिचुएशन में आपके पास 4 चीजें होंगी, नहीं, लाइफ मजा आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इंसान, बाकी लोग तो एक ही डायरेक्शन में सोच रहे हैं और आप 4 चीजें सोच रहे हो। इसको बोलते हैं आर्ट ऑफ पॉसिबिलिज्म। कर दोगे आप? एक इंटेलेक्चुअल जो आपकी वर्थ है वो कैसे है? बाकी लोग तो कह रहे हैं कि ये काम कर लेते हैं, आप कहोगे देखो जी इसकी 2 संभावनाएं हैं, एक तो ये काम सक्सेसफुल होगा, एक अनसक्सेसफुल होगा। अगर अनसक्सेसफुल हुआ तो वो कहेंगे यार बंदे ने जो पॉइंट दिया वो तो सही दिया। नहीं समझे? किसी भी सिचुएशन में आप अगर ये लर्न कर लेते हो कि हर सिचुएशन के मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं और उनको सोच लो, आप उनके जवाब सोच लो आप, नहीं? चलो, यस, एडवर्ड स्नोडेन, जूलियट मैनिंग, वेरी गुड, मानसी फाइन, प्लीज रीड मोर अबाउट इट। मानसी, माही, I hope I have cleared. Julian Assange, Mansi. No? No? ठीक है, let's continue again. हेडिंग बनाइए, राइट द हेडिंग। क्या यार ऐसी वो करो ना, ठंड गर्मी लग रही है। कर दो, बर्फ ही निकले इसमें से तो आज, इतना कर दो। नहीं देखो वो भी बेचारा सुस्त था, थोड़ी सी आई, उसने भी कलेश पाना शुरू किया। नहीं, हर किसी आदमी को इनर्शिया से जब उठाते हो तो वो चिल्लाता है, नहीं, तकलीफ में होता है वो, हर कोई आदमी। इनर्शिया इज द पेन, नहीं। चलो देखो, हेडिंग बनाओ, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। दोनों है, मानसी, स्नोडेन भी है, स्नोडेन फेस है, अंदर जो चला मैंने वो बताया आपको, ठीक है। लिखिए, इसके बाद क्या लाइन लिखी आपने? लिखो, दिस स्कूल ऑफ थॉट focuses on the this school of thought focuses on the consequences of the action on what? Consequences of the action if the action produces pleasure, if the action produces pleasure,
for maximum number, if the action produces pleasure for maximum number and avoids pain for minimum number, for maximum number, again maximum number, अरे पेन भी मैक्सिमम नंबर के लिए अवॉइड होगी ना, that action is considered ethical, ब्रैकेट में ओपन करके लिखो, यूज डिफरेंट पेन, इधर ठीक है, इधर स्पेस मार्जिन रोक रहा हूं हमेशा ही, दैट एक्शन इज कॉल्ड क्या लिखा आपने, एथिकल, लिखो ब्रैकेट में पेन वर्सेस, लिखो प्लेजर कॉन्सेप्ट, पेन वर्सेस प्लेजर कॉन्सेप्ट, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, initially, next para, initially this school of thought was criticized, because pleasure are temporary and are counter productive in the long run. Swati has asked whether spying on the countries is ethical or not. See, spying in the nationalistic context is ethical. It is justified because of the consequences of positive effect on the national security. Mansi, sorry, Swati, ठीक है, कौन है स्वाति, तुम जानते हो क्या, तुम दोनों स्माइल कर रहे हो, तो ठीक है, क्या लिखा आपने लाइन, लास्ट में लॉन्ग रन, नेक्स्ट पैरा, लेटर ऑन, नेक्स्ट पैरा, later on consequentialist thinker justified that these pleasures are not just sensory in nature, these pleasures are not just sensory in nature, rather they involve mental and spiritual pleasures as well. अब समझ में आया बात, मैं समझाता हूं स्कूल ऑफ थॉट। बच्चों ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है, कहता है हर एक एक्शन, समझना, हर एक एक्शन जस्टिफाइड है, हर एक एक्शन क्या है, जस्टिफाइड, अगर वो प्लेजर लेके आ रहा है, क्या लेके आ रहा है, प्लेजर।
pleasure is different from happiness. प्लेजर किससे डिफरेंट है? हैप्पीनेस। प्लेजर, सिगरेट पीना, प्लेजर, इज दैट हैप्पीनेस? खांसेगा कौन? आफ्टर हैविंग सिगरेट्स यू विल हैव प्रॉब्लम इन द लॉन्ग रन और नॉट? नहीं, लंग्स की प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी? पीते तुम, फिर तुम क्यों खुश हो रहे हो? क्या याद आ गया तुम्हें? जीने का गम या पीने की खुशी? तो द आइडिया इज, if that pleasure and this school of thought comes from a very logical or humanistic perspective of life. This school of thought comes from libertarian perspectives. Before that, the world was seen from the perspective that ये सब जो है ना, शरीर का जो भी सुख है वो डार्कनेस है। सोक्रेट्स ने ऐसा बोला, शंकराचार्य ने ऐसा बोला। इंडियन स्कूल ऑफ थॉट, वैदिक स्कूल ऑफ थॉट ने क्या बताया है? ये संसार सब क्या है? माया। ये क्या है? माया। माया का त्याग करो, माया के जाल में मत फंसो। माया में कष्ट है, माया में पीड़ा है, दुख है इस जीवन में, असली सुख मोक्ष का है। तो ढक दो इस माया को। नहीं, I hope you understand what is Maya. Maya is related to senses, pleasure, seeing, touch, listening, taste. 5 senses, right? So, जो भी चीज आपको प्लेजर दे, ये स्कूल उसके अगेंस्ट आया। क्या बोलता है? जो चीज आपको क्या दे? प्लेजर, मजा करो। और आपका मजा किसी दूसरे की सजा नहीं होना चाहिए, सबका मजा होना चाहिए। अगर आपको शराब पीने में मजा आ रहा है और आपके शराब पीने से किसी और को दिक्कत नहीं हो रही है, तो शराब पीना क्या है? एथिकल। उस पर आप सवाल नहीं कर सकते। आप बात समझ रहे हो? किसकी बात हो रही है? मैक्सिमम नंबर की। खाओ पियो ऐश करो मित्रों, हां, पर दिल किसी दा दुखायो ना। पंजाबी लाइन है, सॉन्ग एक, कि जो जीवन में आपको जो करना है करो, लेकिन किसी दूसरे को क्या ना करो आप तंग। दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ लिबर्टेरियन स्कूल ऑफ थॉट। आपका वो एक्शन जस्टिफाइड है जिससे आपको और समाज को प्लेजर मिल रहा है और समाज की पेन कम हो रही है। क्या कम हो रही है? पेन। नहीं, आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। इससे ये जो प्रिंसिपल है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यही प्रिंसिपल लगाती है जब भी कोई काम करना होता है। ये प्रिंसिपल मुख्यतः यूज किया जाता है पॉलिसी मेकिंग में। मान लो मेरा घर है और घर के पास से रेलवे लाइन जा रही है और मेरे घर के होने की वजह से रेलवे लाइन का काम रुक गया है, तो ये प्रिंसिपल, ये स्कूल ऑफ थॉट, मेरे घर को हटाना मुझे हटाना मेरे घर से जहां मैं 100 साल से रह रहा हूं, एथिकली क्या है? जस्टिफाइड। बिकॉज ट्रेन से किसको बेनिफिट होगा? सबको, मैक्सिमम नंबर। Have you been understanding this? Yes or no? ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड कौन सा स्कूल ऑफ थॉट? Consequences. How will you judge an action is ethical or not? If it brought positive consequences for how many number? Maximum number. ठीक है, but is this the answer to all ethical questions in this world? This theory also has certain limitations. What are the limitations? What are the limitations of this theory? Suppose Government of India is advocating industrialization.
This industrialization will give more jobs in world or in India, solving lack job, solving problem of unemployment. This industry now needs raw material, let us say bauxite, and it is found in Odisha in a tribal area. The population of the tribes in this area is only 500, but the benefits of people is lakh. What should we do, madam? Should we allow mining? Should we displace these tribals from their homes and allow mining? नागालैंड में क्वेश्चन आ रहा है, ऑयल हैज बीन फाउंड इन नागालैंड, पता है आपको? नेचुरल रिजर्व्स आर फाउंड इन नागालैंड, एंड शुड वी डिस्प्लेस? अमन, शुड हमें डिस्प्लेस करना चाहिए नागालैंड के लोगों को? क्योंकि पूरे इंडिया को बेनिफिट होगा, लाखों लोगों को, मैक्सिमम नंबर. नाउ लुक एट द नंबर. क्या करोगे? इधर एक बड़ी फेमस प्रॉब्लम है, ट्रॉली प्रॉब्लम, जो बुक्स में दी होती है. आप यहां खड़े हो, लक्षिता, लक्षिता नामक एक लड़की यहां खड़ी है. लक्षिता के यहां से एक ट्रैक, रेलवे का ट्रैक है, इधर एक रेलवे का ट्रैक है. इधर कहीं दूर एक बंदा खड़ा है, और इधर कहीं दूर 5 बंदे खड़े हैं. लक्षिता के हाथ में लीवर है, लीवर. ट्रेन आने लगी, छुक 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 छुक, यहां पहुंची है ट्रेन. या तो इस पे जाएगी या इस पे जाएगी. कौन से ट्रैक पे शिफ्ट करोगे? क्या करोगे मैडम, आप क्या करोगे? व्हाट यू विल डू? हाँ, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन. Personally, number 1, because it will kill only 1 people. See, but it's very hard to make a decision in such situation. Easy or difficult? Difficult. You won't be able to take decision. You won't be. Easier said than done. नहीं कर पाओगे. इनह्यूमेन है किसी को मारना, चाहे बंदा 1 हो चाहे बंदे 5 हो. डजंट फील गुड टू अस. किसी को मार दोगे क्या आप ऐसे? नहीं मार पाओगे. तो दिस थिंकिंग हैज लॉट ऑफ क्वेश्चंस. नंबर 1 क्वेश्चन इज, who is the number? How will you decide maximum number? So majority will always win and minority will always be oppressed. Whether it is tribal minority, whether it is religious minority, whether it is caste minority, majority will always win and minority will always be suppressed. So this thinking is wrong or right? Wrong. Will not always give ethical solutions. Number 2, pleasure is always confused, whether it is short term or long term. शॉर्ट टर्म शराब पी के मजा आता है, बट अगले दिन हैंगओवर हो जाता है, लीवर फेल हो जाता है. देखा है आपने? हैव यू वॉच्ड मूवीज? देख जाते हो सिनेमा? मुकेश आता है. देयर इज अ गाय व्हिच कम बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द मूवी. मुकेश, माउथ कैंसर था उसको, बिकॉज ही एट सो मेनी ऑफ गुटखा. हाँ, एक औरत भी आती है. देखिए आपने ऐड, बहुत मोटी सी है, देखो. नोटी? अच्छा, तुम नोटिस किए? ये नोटिस किया औरत, और मेरे को लगा तुम कह रहे नोटी है बड़ी. वो कैसे लोग हैं ये? बीमारी में भी अपना यौवन ढूंढ रहे हैं उसका. कैसे 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 लोग हैं यहाँ? नहीं,
तो द पॉइंट इज कहीं ना कहीं this theory produces not positive results always. इसकी भी लिमिटेशन पता लगी अब आपको. व्हाट आर द लिमिटेशन? नंबर 1 क्या है? मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी कॉन्फ्लिक्ट. नंबर 2, pleasure is whether it is, they have not defined whether it is short term or long term, and it is very hard to define pleasure. नहीं? किस चीज में मजा आता है सबसे ज्यादा? हाँ, किस चीज में? किस चीज, कौन से प्लेजर में मजा आता है? खेलने में. क्या खेलते हो तुम? कौन से खेल खेल रहे हो? क्रिकेट. ओके, तुम कौन सा खेल खेलते हो? सेम क्रिकेट. तुम नहीं, मजा किस में आता है तुम्हें? क्रिकेट तो खेल रहे होंगे तुम. प्लेजर किसमें आता है? लक्ष्य तो सबसे ज्यादा प्लेजर. हाँ, सोने में प्लेजर आ रहा है. दैहिक सुख तुम्हें? व्हाट इज योर प्लेजर स्टोरी? नो स्टोरी, प्लेजर, नो प्लेजर इन लाइफ. So what is the pleasure you are seeking in life? क्या क्या कह रही है मन? क्या बोल क्या रही है? मतलब क्या हुआ? नदीम, तुम्हें कैसे प्लेजर सीख कर रहे हो? अलग अलग टाइम. बचपन में क्या था? खिलौना. थोड़ा बड़े हुए तो शोहरत. उससे बड़ा हुआ तो रुतबा. उससे बड़ा हुआ खुदा. है ना? नहीं, प्लेजर, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. याद है ना? जब जवानी होती तो अर्थ या काम. नहीं कि अच्छा खाएंगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छा दिखेंगे. But whether it is short term or long term, they are not able to define. However, they have given us a food of thought. Food for thought. Thought for food. नहीं? चलो लिखते हैं. एप्लीकेशन. एप्लीकेशन. Number 1. Yes. Government policies are usually designed. Number 1. Government policies are usually designed with the aim of maximum benefit for maximum number. With the aim of maximum benefit for which number? Maximum number. ठीक है जी. As no one policy, Mansi, Swati, Adarsh, as no one policy can satisfy all the sections of society. Okay, perfect है. Number 2. It brings perspectives of humanism.
यानी कान में क्या चला गया मेरे? अभी कुछ घुसा है। नहीं है ठंडा ना, सर्विस नहीं हुई इसकी लगता है। लिखिए अब, इट ब्रिंग्स पर्सपेक्टिव ऑफ, क्या लिखा आपने? ह्यूमनिज्म। व्हाट इज ह्यूमनिज्म? व्हाट इज ह्यूमनिज्म? ओके, व्हाट इज दिस फिलॉसफी ऑफ इंसानियत? देखो, इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे दुनिया में, फ्रॉम द टाइम्स इमेमोरियल, अगर हम हिस्ट्री को रीड करें, यू विल फाइंड पीपल गाइडिंग योर लाइफ। नहीं, people are taking decisions, some mystic, some ascetic, some religious gurus, they are saying that this world has no pleasure, nothing, you are suffering from the consequences of your past, so you are made to be suffering because of the deeds, wrong deeds done in your past. ये पुराने जन्मों का फल भुगत रही हो मैडम तुम, ये जो हाल है ना तुम्हारा, नहीं समझे? दिस टेक्स कंट्रोल ओवर ह्यूमन एजेंसी। इससे ऐसा लगता है, इस फिलॉसफी से, इस थिंकिंग से, कि जैसा हमारे अपने जीवन पर हमारा खुद का कंट्रोल नहीं है। नहीं कि पास्ट आई कैन नॉट कंट्रोल, आई कैन नॉट चेंज द पास्ट, सो वट एवर माई लाइफ करंटली इज बिकॉज ऑफ द पास्ट, आई विल नेवर बी एबल टू एक्सपीरियंस द फ्यूचर टुडे। डोंट यू फील होपलेस और पावरलेस बाय दिस फिलॉसफी? ह्यूमनिज्म क्या कहता है? ह्यूमनिज्म कहता है कि हर एक को अधिकार है इस जीवन में अच्छा करने का। ह्यूमनिज्म कहता है कि आपको और कुछ नहीं सोचना है। आपको क्या, आप पास्ट जान सकते हो इस जन्म में? नो। क्या आप फ्यूचर को एक्सपीरियंस कर सकते हो? नो। तो लिव इन प्रेजेंट। क्या है प्रेजेंट? ठंड लग रही है तो कंबल डाल लो, गर्मी लग रही है तो एसी चला लो। जिस चीज को आप फील कर सकते हो उसी को बिलीव करो। क्या किसको फील करते हो? पेन को और प्लेजर को। किसको अवॉइड करना है? पेन को। किसको चाहना है? प्लेजर को। सो दिस ब्रिंग ह्यूमनिज्म। एवरी लाइफ इज इंपॉर्टेंट। नहीं, क्या हर एक जिंदगी महत्वपूर्ण नहीं हो जाती इस फीलिंग की वजह से कि तुम्हारे को जीवन में पर्पस क्या है? तुम्हारा मजे लेना और दुख को पीछे हटाना, सुख को भोगना। क्या बनना है मैडम? क्या बनना है आपको? भोगी। यू हैव टू एक्सपीरियंस ऑल द प्लेजर्स। योर लाइफ, यू हैव ओनली वन लाइफ। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। हाँ, दिस इज व्हाट दे बिलीव, ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स। किसको सबसे पहला स्थान दिया गया है? ह्यूमंस को। ना पास्ट सुपर नेचुरल एक्सप्लेनेशन को नहीं दिया गया है कि ह्यूमन जिस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं वही सच है, उसके अलावा सब क्या है? झूठ, मिथ्या, प्रचार, अंधकार। नहीं कर सकते हो इस जीवन में आप जिस चीज को महसूस, किस चीज को महसूस कर सकते हो? दुख और सुख। इसके अलावा क्या फ्यूचर में जाके देख सकते हो क्या होने वाला है? पास्ट में जाके देख सकते हो? ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है इसमें, एम्पावरिंग है ये। हर कमजोर आदमी को एक क्या देता है ये? उम्मीद से ज्यादा उसको बताता है जीवन कोई नरक नहीं है, जीवन कोई कठिन पेन नहीं है, जीवन कोई एक अवॉइडेबल थिंग नहीं है। जब तक जीवन है तब तक उसका क्या लो? मजा। एम्पावरिंग नहीं है ये बात? जीवन कोई भोगने की वस्तु नहीं है, कि पीड़ा नहीं है जीवन कि जो पास्ट में कर दिया अब तक जो भुगत रहे हो। जीवन एक एंजॉय है, एक फेस्टिवल है, जीवन एक मेला है, जीवन एक ऐसा स्टेशन है
कि आप करोल बाग से राजीव चौक पहुंचे, लेकिन राजीव चौक पे आपको दुनिया का मेला लगा हुआ है और आपको क्या करना है, एंजॉय। जब आपकी ये जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी तो आप राजीव चौक से आगे मंडी हाउस पहुंच जाओगे, मतलब टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ योर लाइफ, विच वी डोंट नो, सो वी शुड ओनली फोकस ऑन राजीव चौक। कितना एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट है। पता क्या क्या इसके अगेंस्ट क्या फिलॉसफीज आती हैं। ये जो सेंसरी वर्ल्ड है ना, पेन वाला, ये झूठ है। ये जो शरीर है ना, मांस मज्जा का शरीर है। मांस मतलब मसल्स, मज्जा मतलब हड्डी, कुछ नहीं है ये। असली तो पता क्या है, आत्मा। उसके सुख की बात करो। अरे भाई, मांस मज्जा का है मतलब वो जीवन को एक धिक्कारने पे लगे हुए हैं, एनालिसिस पे लगे हुए हैं। नहीं, एक किस्सा बताता हूं आपको। इमेजिन करिए आप लोग एक झील किनारे जाते हैं। कहां जाते हैं, झील किनारे। उस झील के किनारे अगर लड़के हैं तो एक सुंदर सी स्त्री है आपके साथ, और लड़कियां हैं तो कोई सुंदर सा पुरुष है, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, और झरना गिर रहा है। क्या गिर रहा है, झरना, और आप उसको निहार रहे हो। आपको असीम आनंद की अनुभूति हो रही है। यू आर एक्सपीरियंसिंग प्लेजर्स। इतने में कोई बाबा आता है वहां, वो कहता है, अरे मूर्ख क्या देख रहे हो ये तुम कहते हो देखो कितना सुंदर पानी आ रहा है पहाड़ों से और पत्थरों पे गिर रहा है। आप अभी तक उस मूवमेंट में लीन थे और उस बाबा ने आगे क्या एनालिसिस कर दिया, क्या क्या बोल दिया, ऊपर से पानी आ रहा है और पत्थरों पे गिर रहा है, क्या मजा आ रहा है, मैं अपने जल अपने लोटे से डेली अपना जो पिंड है उसके ऊपर डालता हूं, उसको देखने आ जाना, उसमें और उसमें क्या फर्क है। उसने एनालिसिस करके वो क्या बन गया, एक ऊंचे पेडेस्टल पे बन गया। आपको क्या दिखा दिया उसने, नीचा, कि तुम क्या हो, छोटे आदमी, तुच्छ आदमी। किसमें लगे हो तुम, मांस मज्जा में लगे हो, शारीरिक दैहिक सुख को पाने में लगे हो। जीवन जो है ना वो मूवमेंट्स में है। लाइफ लाइज इन जर्नी, नॉट इन डेस्टिनेशन। एंड यू विल फाइंड पीपल प्रीचिंग यू लाइफ कहां लाई करती है, डेस्टिनेशन में। जर्नी में नहीं बताएंगे वो आपको, क्योंकि जर्नी को तो गालियां देंगे कि जीवन एक पेन है, मरना सबको एक दिन है, जिंदगी में पैसे कमा के क्या करोगे, जाना तो आपको चार कंधों पे ही है। ऐसी ऐसी बातें करेंगे आपके साथ। आपको पर्सपेक्टिव समझ में आ रहा है। ये जीवन को आप एक फेस्टिवल की तरह अगर लेते हैं कि दुख में भी कोई गम नहीं, सुख में भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, हो रहा है तो एक्सपेक्ट, ठीक है, कोई आ रहा है तो आए, कोई जा रहा है तो जाए। नहीं, यस नो, लेट गो। ठीक, वेलकम एवरीवन एंड लेट गो एवरीवन। नहीं, सोच के देखना कभी इस पर्सपेक्टिव में। दिस इज वेरी एम्पावरिंग कॉन्सेप्ट, ह्यूमनिज्म। ठीक है, अब लिखिए लिमिटेशंस ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। आप देखो फिलॉसफी की दुनिया में मजा आ रहा था, ये बहुत मजे वाली बातें हैं। नहीं, लिमिटेशंस। अगर कोई चीज इतनी ही बुरी होती तो भगवान और हमारा प्रकृति उसको बनाते ही ना। अगर कोई चीज इतनी ही, वो आनंद अगर गलत है तो जो कर रहा होता ना वो अपने आप बोलता है ये गलत है। समझे,
When you are doing it, then you also, and after doing it, you should feel bad about it. But you never feel bad about it. Why? So then that pleasure is not wrong. People have analyzed. वो बाबा ने कह दिया कि ये आपके मन से वो जो आनंद आप महसूस कर रहे थे उसको खत्म कर दिया. इस पे एक बार एक और स्टोरी बताता हूं, एक और एग्जांपल देता हूं. पिकासो वॉज अ ग्रेट पेंटर. पिकासो क्या है? ग्रेट पेंटर. Picasso did the painting, and somebody, when there was an exhibition of the Picasso painting, one person came and asked the price of that Picasso painting. Picasso replied $1,00,000. $1,00,000. वो आदमी करता $1,00,000. ये कैनवस $10 का, ये कलर $50 के, $1,00,000. पिकासो ने क्या किया कि दे मेरे को $50. पिकासो ने अपने कलीग को बुलाया, उसको उससे भी बड़ा कैनवस दे दिया और उसको सारे कलर्स दे दिए. जो लोग ये बाबा टाइप लोग हैं, ये उस मूर्त के कलर्स की वैल्यू जानते हैं, उसके किसकी वैल्यू जानते हैं? कलर्स और फ्रेम की. दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ पेंटिंग. उस आर्ट, उस अनुभूति, उस मूवमेंट को नहीं जानते हैं. बात समझे? ठीक, इनफ, ज्यादा डीप हो जाएंगे. लिमिटेशंस देखिए. फर्स्ट, माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी प्रॉब्लम. माइनॉरिटी, स्वाति, मानसी, माही, आदर्श. माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी इशू. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट इसमें लिख लो, ट्राइबल्स राइट्स इशू. माइनॉरिटी वर्सेस मेजॉरिटी इशू में ट्राइबल राइट्स इशू, इसी में ही फर्स्ट पॉइंट में ही ट्राइबल राइट्स इशू. ठीक है जी. सेकंड पॉइंट, लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म प्लेजर इशू. लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म प्लेजर इशू. ठीक है जी. ठीक है. अब लिखिए, डियोंटोलॉजिकल एथिक्स, नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट. ब्रैकेट में लिख दो, इमैनुअल कांत. IMMANUEL, कांत.
यस, दे टॉक अबाउट यूटिलिटी और बेनिफिट। इसकी और डिटेल में आप नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे, ठीक है। इमैनुअल कांत लिखिए इसमें, देखिए, दिस स्कूल ऑफ थॉट judges the right or wrongness of the action based on certain principles, based on certain principles and set of rules ठीक है जी। It says that human beings will justify every action of theirs based on certain consequences, and in fact every action can be justified, and in fact every action can be justified based on consequences. Yes or no? अच्छा, एक और चीज बताता हूं आपको, इस एग्जाम ना, ये एग्जाम जो है बहुत कॉम्पिटिटिव है। प्रीलिम्स इस साल बच्चों का मिले हैं मेरे को, मेरे कई स्टूडेंट हैं जिनका पेपर 1 हो गया, पेपर 2 नहीं हुआ, और सी सैट की वजह से नहीं हुआ। वेरी स्मार्ट का है, बहुत सारे स्मार्ट लोग हैं जिनका नहीं हुआ पेपर 2 की वजह से। बड़ा दुख होता है कि जो चीजें आप सिर्फ 15 दिन की प्रैक्टिस से कर सकते हो, और आपने जो 3-4 साल मेहनत की है वो 15 दिन ना करके आप फेल हो गए। नहीं, बिकॉज ऑफ सी सैट। तो सी सैट के लिए ऐसा नहीं था वो नहीं कर सकते थे, बट किसी ने गाइड नहीं किया कि सी सैट इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम गाइडेंस का है। दिस एग्जाम डेडिकेशन, आई कैन शो यू पीपल हु आर हाउ मच डेडिकेटेड दे आर, हाउ मच डिजर्विंग दे आर। They're coming from IITs and all kind of super competitive exams. But the only thing which matters is direction. बात समझ रहे हैं? डायरेक्शन मैटर करती है, इतना कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है। क्या लिखा आपने? Based on consequences. Therefore, they focus on
मेकिंग ह्यूमन एक्शन ethically justified based on ethically justified based on यूनिवर्सलिज्म। अंडरलाइन करो, समझाता हूं इसको, ध्यान से सुनना। ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है, क्या बोलता है स्कूल ऑफ थॉट? सुनो, ये स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? ये कहता है कि अभी तक जो लोग भी आए हैं वर्च्यू थिंकर्स, वो लोग आपके ऊपर अपनी सोच मनवा रहे थे। उन्होंने कहा एक इंसान को एथिकल होने के लिए विजडम की जरूरत पड़ती है, जस्टिस की जरूरत पड़ती है, टेम्परेंस की जरूरत पड़ती है, करेज की जरूरत पड़ती है। किसी और के प्रिंसिपल्स आप पे लागू किए जा रहे थे। फिर इन्होंने कहा कि कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट और यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट वो चालू माल है। पता क्या करता है? हर चीज को जस्टिफाई कर देता है, किस आधार पर? कि उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस हैं। शराबी क्या कहेगा कि पता है मेरे शराब पीने से कितने लोगों का घर चलता है, मेरे शराब पीने से जो शराब का खोखे का उसके बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि उसको मैं क्या देता हूं? पैसे। मेरे सिगरेट पीने से कितने लोगों को रोजगार मिलता है, सिगरेट बनाने वाली कंपनीज को पैसा फायदा होता है जिससे वो लोगों को रोजगार देती हैं, इंप्लॉयमेंट मिलती है मेरे सिगरेट पीने से। देख रहे हो मैं देश की तरक्की में कितना साथ दे रहा हूं। एवरीवन। चोरी करने वाला क्या कहेगा? मैंने चोरी इसलिए की कि मेरे पास कमाने का कोई और सोर्स नहीं था। डोंट यू थिंक एवरीवन हैज द रीजंस टू जस्टिफाई देयर एक्शंस विद द हेल्प ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस? यस, नो? दे से तो इन्होंने वर्च्यू थिंकर को भी गलत बता दिया। किसको गलत बता दिया? वर्च्यू थिंकर। और किसको गलत बताया? कॉन्सिक्वेंशियलिज्म। नहीं? अब सुनो, फिर इनसे पूछा गया भाई तुम बताओ एथिक्स है क्या? फिर कैसे आप एथिकल एक्शन को जज करोगे, स्टैंडर्ड्स कैसे बनाओगे? इन्होंने कहा एक प्रिंसिपल। क्या? इन्होंने कहा हर आदमी के पास क्षमता है एथिकल बनने की। क्या तुम एथिकल बन सकते हो? यस। तुम बन सकते हो? यस। तुम बन सकते हो? यस। बट एक रूल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? एक कानून। मेरी बात मत मानो, क्योंकि अगर मेरी बात मानोगे तो अल्टीमेटली वर्च्यू थिंकर्स की तरह मैं भी तुम पे इंपोज कर रहा हूं अपनी बात। तुम किसकी बात मानो? अपने दिमाग की। रैशनल थिंकिंग करो। और एक प्रिंसिपल लगाना है आपको, आपका एक्शन वो जस्टिफाइड है एथिकली अगर वो यूनिवर्सलाइज हो सकता है। क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? यूनिवर्सलाइज। एग्जाम्पल, क्या मर्डर करना एथिकल है? क्यों एथिकल नहीं है? इसलिए नहीं कि वर्च्यू थिंकर्स ने बोला, इसलिए नहीं कॉन्सिक्वेंशियलिस्ट ने बोला, इसलिए इफ एवरीवन स्टार्ट्स डूइंग द मर्डर सोसाइटी विल फिनिश। क्या मर्डर को हम यूनिवर्सल एक्शन कर सकते हैं हर एक का? क्या चोरी करना जस्टिफाइड है? नो। अगर एवरीवन स्टार्ट डूइंग चोरी देन हु विल अर्न? आप मेरे से पूछोगे क्लास में लेट आ सकता हूं मैं कहूंगा नहीं। अगर आपकी तरह सभी लोग लेट आना शुरू कर दिए तो क्लास में जल्दी कौन आएगा? टाइम पे कौन आएगा? क्लास कैसे होगी? तो कौन सा प्रिंसिपल लगाना है आपको? क्या वो एक्शन क्या हो सकता है? यूनिवर्सल, एट ऑल टाइम, एट ऑल मोमेंट्स, इन ऑल सिचुएशंस। कैन दैट बी अप्लाइड और नॉट? ट्रैफिक तोड़ना, कह रहे सर मैं लेट हो गया था ऑफिस से। अगर सभी ऐसा सोचना शुरू कर देंगे तो ट्रैफिक क्या हो जाएगा? अस्त व्यस्त। करो जस्टिफाई, वो बताओ। क्या स्पाइंग एथिकल है बाय दिस रूल? नो। इफ एवरीवन स्टार्ट डूइंग स्पाइंग
बात समझ में आई? आई होप यू गाइज ऑनलाइन इंजॉय कर रहे हो। रिप्लाई नहीं आ रहा बहुत देर से। सिर्फ स्वाति का लास्ट क्वेश्चन है। स्वाति, मानसी, माही, आदर्श, ठीक है जी। ठीक, समझ में आया ये तीनों? क्या लिखा है आपने? लिखिए। इट रेफर्स टू, नेक्स्ट पैरा, इट रेफर्स टू judging the, it refers to judging the ethical ness of the action based on one categorical based on one categorical imperative, मैं लिख देता हूं ये, based on one that whether the action can be applied, whether the action can be applied in all context, whether the action can be applied in all context. This philosophy gives, नहीं अच्छी नहीं लगी ये फिलॉसफी तुम्हें? नहीं, एम्पावरिंग नहीं है? कहीं भी यूज कर सकते हो आप, राइट और रॉन्ग की बात आगे दोनों कर सकते हो। दिस फिलॉसफी गिव्स इंपॉर्टेंस टू ह्यूमन रैशनैलिटी, ओन माइंड, सीधा ऑन माइंड। आप अपने दिमाग से सोचो कि कोई एक्शन एथिकल है या नहीं है, अगर वो हर किसी के लिए अप्लाई होने लग गया तो क्या गलत है? ठीक है, क्या लिखा है आपने? ह्यूमन रैशनैलिटी, ठीक है, किसको इंपॉर्टेंस देती है? ह्यूमन रैशनैलिटी। एंड एवरी इंडिविजुअल कैन अचीव rightness in the action। ये बहुत गहरी फिलॉसफी है। देखो इसको लिंक करता हूं मैं आप इंडियन स्कूल ऑफ थॉट से। जस्ट टेक 2 minutes एंड रीड वट एवर यू हैव रिटन। 2 मिनट लो, 5 मिनट लो, 10 मिनट लो। नीचे ही नहीं होता है ना? क्या नीचे नहीं हो रही? यहां से उखड़ाइए। प्लीज रीड, लिखो, कोई बात नहीं, आप छोड़ दो, होगी नहीं, ऊपर हो जा रही है, नीचे नहीं हो रही, समझे?
अपनी गोड जैसा फीलिंग आ रहा है सर. मैनी टॉपर्स से दैट वी हैव क्लियर्ड एग्जाम बाय सेल्फ स्टडी मींस दे लाई. दे से दैट वी हैव रेड दिस बुक एंड दैट बुक. वेरी गुड क्वेश्चन ईशा. Many topper clear by self study. You will also become the topper by self study, but under right direction. Self study without direction. They might have taken direction online, YouTube video, some certain material. Isha, what should be the right strategy for CSAT? Mansi, not in the ethics class. I'll discuss this. I'll discuss. I cannot discuss. Maybe your mentor can help. Mansi. Sir, can we write example to minority versus majority issue like Sardar Sarovar Dam where many people were displaced due to construction of that dam? Very good example, Sardar Sarovar Dam, building of dams leading to displacement of few and many thousand people will benefit. Very good Swati, very good thinking Mansi, Isha. I am very happy you guys are thinking in right direction, understanding each and every concept. आपको आ रहा है इधर समझ में concept? अच्छे से आ रहा है? एकदम एक्सप्लेन कर दोगे किसी को भी? चलो आप लोग कर दोगे नदीम एंड फिरदौस? कल रील डाली थी, ठीक लगी? लेटेस्ट वाली. अभी एक और डालूंगा रील. तुम्हें ठीक लग रहा है? यूट्यूब क्यों? अच्छा अच्छा, उससे पहले देखी तो है तुमने? अच्छी लगती है? अच्छा, वो लोग नहीं आ रहे, उनका कोर्स हो गया शायद पहले. क्या? ये डियोंटल ड्यूटी एथिक्स है. ये जस्टिस एथिक वर्च्यू. वर्च्यू मतलब ट्रेड्स जो फोकस करते हैं इंडिविजुअल दिल का अच्छा होना चाहिए. ये फोकस करते हैं एक्शन अच्छा होना चाहिए. कॉन्सिक्वेंसेस से हमें मतलब नहीं है, एक्टर से हमें मतलब नहीं है. एक्टर किसी और ने दिया उसको ट्रेड्स जज करने के. कॉन्सिक्वेंसेस किसी हर कोई जस्टिफाई कर देगा. किसको जज करो? एक्शन को. और किस प्रिंसिपल पे? कैटेगोरिकल इंपैरेटिव. एक ही कसौटी, क्या? यूनिवर्सलिज्म. वेदर दैट एक्शन कैन बी जस्टिफाइड. इसको सिंप्लीफाई करें और ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड. मैं झूठ बोल रहा हूं, क्या मैं झूठ सहन कर पाऊंगा? कर पाऊंगा? नो. सो दिस थ्योरी सेज इफ दैट एक्शन ऑफ योर्स व्हिच यू आर डूइंग कैन बी यूनिवर्सलाइज, अगर तुमको भी वैसा ही एक्शन करने मिले, क्या तुम उसको जस्टिफाई करोगे? नो. नहीं, ये तो कह रहा है एक्शन, ये तो कह रहा है. यूनिवर्सलिज्म का क्या मतलब है? कि मेरा जो एक्शन है अगर सब लोग वैसा करने शुरू कर दें, अगर वो सही होगा तो सही है. बात समझ में आई? राइट? ओके मानसी. मानसी ने पूछा है लिमिटेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंशियलिज्म. कॉन्सिक्वेंशियलिज्म सेज अगर किसी एक्शन से प्लेजर मैक्सिमम नंबर का बढ़ रहा है और पेन मैक्सिमम नंबर की कम हो रही है तो वो एक्शन एथिकल है. वो एक्शन क्या है? एथिकल. अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है? 100 लोग हैं, मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, यूपीएससी का मेंस एग्जाम है आपका अगले दिन, और आपके घर के बाहर लाउड स्पीकर लगा के हजारों लोग डांस कर रहे हैं, लेकिन आप अकेले पढ़ रहे हो. आप कहो ये लाउड स्पीकर बंद करो, कॉन्सिक्वेंशियलिज्म थिंकर क्या बोलेंगे? मैक्सिमम नंबर देखो, 100 लोग खुश है ना, सिर्फ एक बंदे की वजह से हम बंद करें माइक. उस समय कैसा लगेगा आपको मानसी? मानसी कैसा लगेगा?
नहीं, दिक्कत यही है। हर कोई बंदा जो पावरलेस होता है किसको गाली देता है? पावरफुल बंदे को। और जब वो पावरफुल बनता है तो फिर क्या करता है? एक्सप्लॉइट किसको? पावर को, पावर को। नहीं, ये तो चल रहा है समाज में। ओपोजिशन महंगाई महंगाई महंगाई, और खुद पावर में आई तो कोई महंगाई नहीं है। ये तो पूरी दुनिया में बढ़ रही है, इंडिया में कम है। नहीं, तो ये आई होप मानसी यू अंडरस्टूड। मानसी परफेक्ट, ठीक है। तो सवाल यही है कि हम जब अपने ऊपर बात आती है तो हम अलग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं, एंड व्हेन इट कम्स टू अदर्स वी गिव डिफरेंट स्टैंडर्ड्स। व्हाई? When we are in a lane, have you been to toll tax? कोई गया टोल टैक्स पे? हम क्या चाहते हैं कि हम लाइन में ना लगे, हमें पहले रैंक मिल जाए। हर कोई यही चाहता है। If you are given special preference, imagine everyone is given special preference, what will happen? No one is special then. नहीं? इसको समझना है अगर आपको, तो एक मूवी आई थी Apocalypse Day or One Judgment Day or the day when all humanity will die, that is 2012। पता है, देखिए आपने मूवी 2012। वो मूवी में क्या होता है, फिर प्रिविलेज लोग एक शिप खरीदते हैं जिसमें उनको ही एक्सेस है, बाकी लोग, और उसमें समाज का हर आदमी एंट्री पाना चाहता है एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। नहीं, हम यही तो चाहते हैं, हमें प्रेफरेंस मिले, दूसरा जाए भाड़ में हमेशा से। क्या बोलते हो अमन? नहीं, वेरी गुड मानसी, माही। हैप्पीनेस का रियल फंडा, दिस इज कॉल्ड एथिक्स। माही का कहना है, इन द वर्ड्स ऑफ गांधी जी, हैप्पीनेस इज व्हेन व्हाट यू थिंक, व्हाट यू से एंड व्हाट यू डू आर इन हार्मनी। आपको पता था ये बात? पता थी आपको ये बात? गुड, माही ने अच्छा ज्ञान दिया इसका मतलब। नहीं, पढ़ो। पढ़ लिया? पढ़ लिया आपने? आपने पढ़ लिया? कहां जाने की तैयारी है? कहीं नहीं जाना? पढ़ लिया तुमने अमन? पढ़ो फिर। मैं प्लेजर की बात कर रहा हूं, है ना, कॉस्मिक प्लेजर की बात नहीं कर रहा मैं यहां पे कि आपको मोक्ष मिलेगा। मैं बात कर रहा हूं कि जो चीज आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उसी को सच मानो, तो इंसानी फितरतें सही हो जाती हैं यहां पे। नहीं, हाँ, देखी थी आंखों, देखी आपने मूवी? आंखों देखी मूवी देखी है आपने? सच क्या है वो है? नहीं, पढ़ो, लिखो, एप्लीकेशन ऑफ ड्यूटी थिंकर्स और डियोंटोलॉजी एथिक्स। एप्लीकेशन ऑफ डियोंटोलॉजी एथिक्स। लिखो इसमें, एक्शन को। लिखो फर्स्ट पॉइंट,
It makes the society more disciplined. Gunnar or Gunnar Myrdal commented that India is a soft society. India is a soft society whereby there is lack of discipline. Whereby there is lack of discipline. ठीक है? It is a main reason for its underdevelopment. So India will become rule bound. Why rules are violated in India? बताओ क्या लगता है इंडिया में रूल्स क्यों नहीं फॉलो होते? इंडिया में क्या होता है, वी आर सॉफ्ट सोसाइटी, मतलब कि हम हर चीज का एक्सेप्शन निकाल लेते हैं कि नहीं नहीं इनको जाने दो, ये मेरा रिलेटिव है, इनको जाने दो। मान लो एक पुलिस चालान काटने के लिए खड़ा है पुलिस वाला, हमें चालान कटवाने से दिक्कत नहीं है अगर एक्सेप्शन ना हो तो, लेकिन कोई लॉयर आया, पुलिस वाला कहेगा कि नहीं ये लोग तो हड़ताल कर देंगे, हमें इनसे काम पड़ता है, इसका चालान नहीं काटते। किसी बड़े अधिकारी का बेटा आया, उसका चालान नहीं कटेगा। किसी बड़े अधिकारी की गाड़ी आई, उसका चालान नहीं कटेगा। तो इंडिया में एक्सेप्शंस ज्यादा है, रूल्स के लिए डिसिप्लिन कम है, जिसकी वजह से इंडिया एक डिसिप्लिन सोसाइटी नहीं बन पाती, जिसकी वजह से इंडिया में कोई काम जो कहा जाता है वो इंप्लीमेंट नहीं होता है। नहीं तो इंडिया कौन सी सोसाइटी है? सॉफ्ट, कि रूल्स हमारे यहां सब है, लॉज हमारे यहां सब है। ये जो फिलॉसफी है ना, हमारे इंडिया में रूल फॉलो करना सिखा देगी, बिकॉज दिस फिलॉसफी सेज अगर आप एक्सेप्शन दे रहे हो तो सबको दो, कि ये कल को अधिकारी का बेटा आ रहा है, कल को किसी और का बेटा आएगा, सबको दे दोगे क्या, अलाउ कर दोगे क्या आप? तो ये क्या कहेगा, रूल बाउंड सोसाइटी बना देगा इंडिया को, डिसिप्लिन सोसाइटी बना देगा। लाइक जापान, जापान में जब ट्रेनें आती है लोग घड़ियां मिलाते हैं, टाइम सही है, घड़ी का टाइम आगे पीछे तो नहीं चल रहा। और हमारे इंडिया में कभी ट्रेन, वंदे भारत के लिए 14 ट्रेन लेट होती है डेली। ट्रेन से ट्रेवल किया आपने कभी? किया है? चुक चुक किया है? टाइम पे मिली? मैं तो बहुत, मैं जीवन में ना लेस देन 10 टाइम्स ट्रेन में ट्रेवल किया होगा मैंने, लेस देन 10 टाइम्स। और एक बार मैं आ रहा था लखनऊ से, और वो थी कौन सी, दुर्गावती या फिर पता नहीं कौन सी एक्सप्रेस थी, जब वो ट्रेन मुड़ती थी ना, उसके शीशे कड़कड़ 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 चिल्ला बोलने लग जाते थे। 2-4 दिन तक तो ऐसे ददक ददक रही शरीर में, घर आने के बाद भी शरीर ऐसा लग रहा था हिल रहा है, इतनी हिल रही थी ट्रेन। हाँ नहीं बताओ, तो क्या सर्विस है? कुछ नहीं सही हुआ है। आप फैक्ट्स को देखोगे तो कुछ सही नहीं है, टीवी में देखोगे तो सब सही है। अरे भाई कुछ ट्रेन ठीक हुई हैं, लेकिन वंदे भारत की वजह से बाकी ट्रेन पे असर पड़ा है बहुत ज्यादा, सच में। क्या? हाँ ये भी तो वंदे भारत के ऊपर आ रहा है ना, ब्लेम आ रहा है, न्यूज़पेपर में आर्टिकल है इस पे। ठीक है, क्या लिखा आपने? सेकंड पॉइंट, it will inculcate duty, ethics in the civil servant, whereby they will follow constitutional values, religiously,
whereby they will follow constitutional value religiously. ठीक है, परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, एप्लीकेशन। लिमिटेशंस लिखो, लिमिटेशंस हेडिंग। This philosophy does not provide for ओ तेरीगा, माधव के इंटरव्यू में स्कोर है 205, हाईएस्ट स्कोर। मेंटरशिप, ज्ञान, जो ये ज्ञान है जो मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये मैं उससे डिस्कस नहीं करूंगा। क्या बोलते हो, नहीं समझे? जब आदमी के थॉट्स लिबरेटेड हो जाएंगे, डोंट यू थिंक दे आर इंप्रेसिव? या नहीं? सारा खेल बातों का ही तो है। क्या लिखा है लाइन? does not provide for flexibility or exceptions which are required. This philosophy does not provide for flexibility and exceptions which are required in the administrative working, in the administrative working. ठीक है, ठीक है, समझ आया? ठीक है, रीड करो और फिर क्वेश्चन पूछो अगर कुछ है तो, नहीं है तो वी कैन कंक्लूड, वी कैन कॉल इट अ डे। अब हमारी कुछ क्लासेस पेंडिंग है जिसमें मैं इमोशनल इंटेलिजेंस, रोल ऑफ मदर फादर, और तीसरा कराऊंगा आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, रोल ऑफ मदर फादर, और तीसरा मैं आपको कराऊंगा, मैं बताता हूँ। एक दिन इसमें लगेगा मदर फादर वाले में, इमोशनल इंटेलिजेंस में एक दिन लगेगा, एटीट्यूड, साइकोलॉजी के टॉपिक्स बचे हैं, साइकोलॉजी एंड लिटिल बिट ऑफ सच। मजेदार है, डीप मीनिंग। क्या उसकी मार्कशीट पोस्ट करूंगा ग्रुप पे?
ईशा ने पूछा लिमिटेशंस ऑफ डियोंटोलॉजी। भाई देखिए, ये थ्योरी कहती है कि आपको झूठ नहीं बोलना कभी। मान लो आपके जान पे बनाए ईशा, क्या आप झूठ नहीं बोलोगे? ये थ्योरी तो ये कहती है कि कभी भी एक्सेप्शन होनी नहीं चाहिए। किसी भी सिचुएशन में आपकी कनपटी बंदूक है, बताओ आपके पेरेंट्स कहां हैं, बताओगे नहीं ना, झूठ बोलोगे ना। फिर यस, टेलीग्राम ग्रुप आई विल पोस्ट। यस मानसी, it is required Mansi, it is required in administrative working. Simran, I have posted in Satya Speak UPSC Chatur Telegram group. Look at his GS paper score 4. Look at GS paper score, हाँ 4 में ethics में, और look at his essay score. Essays are best. नहीं, GS पेपर 4 में 102 है ना, 102 है ना। हाँ 3 में कम है, लेकिन 4 में सही है उसके 102। एथिक्स अप्रोच, उसका माइंड समझ रहे हो तुम, जो फिलोसफिकल माइंड हो चाहिए उसका, वो माइंड बन चुका था। नहीं, कॉमर्स। मैं आई पोस्ट एवरीथिंग ऑन यूट्यूब, यूपीएससी चतुर पे मैं लेके आऊंगा इसको, और हम यही, और बिल्कुल जनरल शूटिंग करेंगे। ऐसी नहीं कि भाई उसको एग्जाम सेटिंग्स में आंसर देने होंगे। एक नॉर्मल, जैसे एक एस्पिरेंट सोचता है, जैसे तुम सोचते हो, वो भी वैसे ही सोचता है। इट्स ऑल अबाउट नर्चरिंग, नथिंग एल्स। तो उसको इंटरव्यू में लाइव करूंगा यूट्यूब अपने इसी चैनल पे, यूपीएससी चतुर पे। यू मस्ट लिसन टू इट। कैटेगोरिकल इंपैरेटिव पूछा है माही ने। कैटेगोरिकल इंपैरेटिव मींस यूनिवर्सल, इफ एन एक्ट कैन बी यूनिवर्सलाइज्ड, अगर कोई चीज यूनिवर्सलाइज्ड हो सकती है। माही, क्या झूठ बोलना गलत है या सही? अगर झूठ बोलना, सब लोग झूठ बोलना शुरू कर दें, ट्रैफिक का रूल तोड़ना गलत है या सही? गलत है, क्योंकि अगर सब लोग रूल तोड़ेंगे तो कैटेगोरिकल इंपैरेटिव का मतलब होता है एक प्रिंसिपल लगाना हमेशा, क्या कि क्या वो एक्ट यूनिवर्सल हो सकता है, यूनिवर्सल मतलब सब पे लागू हो सकता है या नहीं हो सकता है। वो एक्ट जस्टिफाइड है अगर वो सब पे लागू हो रहा है तो। माही आपके लिए, मानसी एक्वायर, सॉरी रिक्वायर्ड, ईशा यस, तलवीन, अरे आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। क्या 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 बिहेवियर? अच्छा अच्छा, एक्शन। आप रूम में बैठे हो, टीवी देख रहे हो, वो एक्शन है। आप रूम में बैठे हो, रूम में इसके फिरदौस के साथ आप बातचीत कर रहे हो, वो बिहेवियर है। बिहेवियर इज ऑलवेज टेकन इन एनवायरमेंटल कंडीशन, या कोई प्रेजेंट होता है या कुछ ऐसा एलिमेंट होता है जिसके कंटेक्स्ट में बिहेवियर वर्ड यूज किया जाता है। एक्शन वर्ड किया जाता है यूज स्टैंड अलोन। तो हम हमेशा एथिकल एक्शन नहीं देखते, हम एथिकल बिहेवियर देखते हैं। वर्ड, यस, वर्ड जो बिहेवियर सोसाइटी के लिए नहीं, आप अकेले हो, कोई है वहां पे एनवायरमेंटल फैक्टर नो, तो बिहेवियर वहां पे वर्ड यूज होगा एक्शन, और जब कंटेक्स्ट आएगा तो क्या वर्ड यूज होगा? बिहेवियर। ठीक है। क्या ट्रेट्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। वैल्यूज पॉजिटिव है, नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, जैसे ग्रीड एक नेगेटिव वैल्यू है, बट वो शॉर्ट टर्म फायदा करती हैं, लॉन्ग टर्म नहीं करती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज जो लॉन्ग टर्म फायदा करती हैं, दैट बिकम्स योर बिहेवियर, दैट बिकम्स योर हैबिट, दैट बिकम्स योर कैरेक्टर।
इफ एक्शंस इन्वॉल्विंग दैट वैल्यू, अगेंस्ट दैट वैल्यू नहीं। आप ऑनेस्टी आपकी वैल्यू है और आप चोरी करते रहे हो तो आपका कैरेक्टर स्ट्रांग नहीं होगा, आपका कैरेक्टर वीक बोलेंगे हम। ठीक है, सिर्फ नाम चारेगा, नाम चारेगा ऑन द बेसिस ऑफ यूटोपिया, डिस्कशन के लिए। ये बात करता है क्या होना चाहिए, नॉर्म्स, क्या होना, नॉर्म्स, क्या हो रहा है वो है रियलिटी। तो एथिक्स नॉर्मेटिव वो है, रियल हुआ नॉर्मेटिव। अरे वाह, सीख गए आप तो। ठीक है, आसान है जीवन। चलो फिर एंजॉय करो। हाँ, यस यस यस, हाँ, बिकॉज इट इज इनडिसिप्लिन, they don't follow what they say, they just don't follow। बहुत सारे रीजन हैं, बहुत सारे रीजन। इसके पीछे 3 रीजन होते हैं रूल्स तोड़ने के पीछे। जो नर्चरिंग, इसको मैं समझाऊंगा जब, याद रखना है क्वेश्चन मेरे से पूछना दोबारा भाई, ये सवाल याद रखना। कुछ लोग कह रहे हैं कि मजा रूल्स तोड़ने में क्यों आता है, जैसे लिखा होता है यहां मत ये करें, वहां पे जरूर हो रहा होता है वो काम, इंडिया में नहीं करो। नो आदर्श, इट इज रॉन्ग। प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर एथिकल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी इज रॉन्ग, रॉन्ग। ठीक है भाई, चलो, थैंक यू।